बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आई वाज रीडिंग वंस दैट योर रेमेडी इज विद इन यू बट यू डू नॉट सेंस इट, and your sickness is from you but you do not perceive it. You presume yourself as a small entity, but within you is an unfolded universe. आपके अंदर पूरी एक यूनिवर्स होती है। आपकी ये जो यूनिवर्स होती है, अगर ये यूनिवर्स एक्सप्लोर करनी हो तो who would be the best person to ask other than the person who loves to share his wisdom with the audience he has. I'm talking about a person who has been founder and CEO of Talk Corporation, former executive director TAI Karachi, former director and CEO of School of Leadership, worked in Unilever for some time and attended IBA, DHA degree college में भी जाते रहे. He had early education from St. Bonaventure's High School, lives in Islamabad now. We are lucky to have him in Islamabad, but belongs to Hyderabad and the whole Pakistan. He has more than 32,000 followers in his Facebook platform. I'm talking about nobody else other than our very own Umair Jaliawala. Assalamu alaikum, Umair bhai. Assalamualaikum Shahzad, thank you very much for a very kind and elaborate introduction. I love to have you. At last, we have caught you on our platform. Thank you very much for your time and wisdom sharing invitation. Umair bhai, we have very simple agenda of our platform. I am lucky to have you as 121st guest of my platform. अल्लाह का शुक्र है कि आज आपसे पहले तकरीबन 120 से 121 लोग जो हैं वो आके इन टॉपिक्स के ऊपर बात कर चुके हैं. And today we are going to unfold your wisdom on similar 3 topics, and the topics state as a list of only 3 words, that is life, excellence and adversity. Before we go into the agenda, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म के जो ऑडियंस हैं, अगर मैं उनको कैटेगराइज करना चाहूँ तो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, न्यू स्टार्टअप्स, ट्रेनिंग इंडस्ट्री के लोग, एंटरप्रेन्योर्स और ऐसे लोग जो पोस्ट कोविड बहुत से सवाल अपने पास रखते हैं, उनके हवाले से भी बात कर रहे होंगे. सो फॉर्मली वंस अगेन आई थैंक यू एंड वेलकम ऑन द बोर्ड. Thank you very much Shahzad, and you've done a remarkable job माशाल्लाह. आपने 100 तो सेंचुरी तो पूरी कर ली है, and I wish you a double century, and this is great माशाल्लाह, wisdom put together, knowledge put together by people like you. So बहुत खूबसूरत बात है. मेरी बहुत माजरत, मैंने लास्ट टाइम आप पे कैंसिल किया और इस मर्तबा आप पे कनेक्शन की वजह से डिले किया. So very sorry for the delay, and you're very committed. I must say that about you. थैंक यू उमर. उमर, जब हम बात करते हैं आज के टाइटल की विच सेज दैट योर रेमेडी इज विद इन यू, यानी कि हमारी अगर कोई मुश्किल है तो उसका हल भी हमारे ही पास मौजूद है. और आपकी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हम बात भी देख रहे थे कि आप भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं. और मुझे ये बताइए कि इफ़ यूनिवर्स इज विद इन अस and then life becomes more precious than ever we think of. And if life is that much precious and that is one time affair too, so it is very important to have a definition of life. तो अगर मैं उमैर साहब को ये कहूँ कि उमैर भाई आपकी नज़र में लाइफ की क्या डेफिनेशन होगी, तो you may share your definition of life with our audience. It's a very profound question, and I feel very small in my capacity to be answering this. What I've understood of life is that it's not perfection, it's an examination. And this is the opportunity. यही opportunity है, और इसमें power भी आपके पास है जो कि आपके अंदर बसता है. तभी your remedy is within you comes from Hazrat Ali. Beautifully said. और मैं एक कहानी से इसको रिलेट करना चाहूँगा, और जिंदगी से भी आई थिंक ये बहुत मुझे जिंदगी समझाती है. मैंने ये कहानी डॉक्टर वेन डायर से सुनी, who's been a wonderful author, and a lot of consciousness I learned from his writings. So he narrates this story, शहजाद, के किसी शख्स की चाबी गुम हो गई है. आप समझें ये चाबी उसके लिए बहुत अहम है. ये वो चाबी है जो कि शहजाद को कामयाबी दिला सकती है. तो चाबी गुम हो गई है, लेकिन जहाँ गुम हुई है वहां अंधेरा है. तो बहुत ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन मिलती नहीं है. तो सामने रोशनी नजर आती है, तो वहां जाके चाबी ढूंढना शुरू कर देता है, और बहुत देर ढूंढता रहता है. तो दूसरा कोई शख्स आता है, कहता है क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं चाबी की तलाश में हूँ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट की, इट्स अ की टू सक्सेस. तो वो भी साथ ढूंढने में लग जाता है. फिर वो कहता है कि आर यू श्योर कि शहजाद तुमने चाबी यहीं गिराई थी? शहजाद कहते हैं नहीं, चाबी तो मैंने यहाँ नहीं गिराई थी, चाबी तो मैंने वहां गिराई थी.
तो कहता है फिर तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो कहता है क्योंकि रोशनी यहाँ पे है। तो शहजाद, जो आपके मेरे अंदर है ना, वो अंधेरा होता है, और उसमें चाबी की तलाश बहुत मुश्किल लगती है। और जो इर्द गिर्द होता है ना, वो बहुत रोशनी रखता है। वो स्टेज भी होता है, वो माहौल भी होता है, उसमें हमारी बड़ी बड़ी नॉलेज भी हमने बना ली, इजादें भी है, सोशल मीडिया भी है, बड़ी रोशनियां रंगीनियां है, लेकिन उन सबके बाद शहजाद सोता तना है। और शहजाद ने आखिर में भी तन्हाई सोना है उस कब्र के अंदर। सो लाइफ एक्वायर्स ट्रू मीनिंग व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द एंड। के एंड क्या है, हासिल क्या करना है। उमेर को 1000 तमगे मिल जाएं, उसका अगर कोई आखिर का हासिल नहीं है, तो वो क्या हासिल हुआ शहजाद? I could be happy today and I could be happy this evening, but if I'm eternally unhappy, then what good is that happiness? So life is a wonderful opportunity. It's a remarkable exam, और एग्जाम में आप कंफ्यूज भी होते हैं, एग्जाम में आप फियर भी आते हैं, सही जवाब देके भी शहजाद लगता है कि सही जवाब नहीं दिया। यस, तो हमारे सामने बड़े बड़ों की मिसालें हैं जिनको जिंदगी में बशारत दी गई जन्नत की, और फिर भी खौफ में रहते थे कि पता नहीं इम्तिहान में कामयाब होंगे या नहीं। ये मिस्ट्री इंसान को दीवाना भी करती है, और यही मिस्ट्री इंसान के डिजाइन में उसको आगे भी बढ़ाती है। अगर उसको पहले से पता हो तो वो उसके लिए एफर्ट ना करे। जिस फिल्म का आपको पता होता है, उस फिल्म में आप इंटरेस्टेड नहीं रहते, उस तरीके से इंटरेस्टेड नहीं रहते। सो आई लुक एट लाइफ एज दैट। नाउ, अंडरस्टैंडिंग लाइफ, another analogy that I'd like to draw, एक तो चाबी की मिसाल बहुत अहम है कि यहाँ अंधेरा होता है, अब इसलिए हम वहां ढूंढते हैं जहां पे रोशनी है, लेकिन वहां जितना भी ढूंढ लें मिलनी नहीं है, क्योंकि it is here. Now, what does this mean? This means, Shahzad, that Umair's reality is not Shahzad's reality. Umair's circumstances are not Shahzad's circumstances. तो इसकी जो चाबी है वो भी सिर्फ, जब मसला सिर्फ मैं जानता हूं और सिर्फ मैं समझ सकता हूं और मैं जीता और मैं महसूस करता हूं, तो हल तो एंथनी रॉबिन्स के पास नहीं होगा। उमेर भाई अगर ख्याल हाल ख्याल हो सकता है, रोशनी हो सकती है, लेकिन मैंने इस दुनिया की रोशनी को से अपने आप को मजीद जानना है। इनलाइटनमेंट कैसे हासिल करते हैं हम? बगैर एक्सपोजर के तो नहीं हासिल करते, लेकिन जंग असल में खुद ही को बुलंद करना है यार। दैट्स द बॉटम लाइन। क्यों बॉटम लाइन है शहजाद? क्योंकि मैंने अकाउंटेबल सिर्फ इसके लिए होना है। ऑलराइट? और आपने मेरी जिंदगी 10 साल बाद नहीं जीनी, मैंने जीनी है। आपने मेरी जिंदगी 20 साल बाद नहीं जीनी, मैंने जीनी है। सो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन कि क्या मैं 10 साल बाद, क्या मैं 20 साल बाद अपनी जिंदगी से मुतमईन महसूस करता हूँ, खुश महसूस होता हूँ, फुलफिल्ड फील करता हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं फील करते, एंड वी नो दैट, and they keep running. So another analogy here is, and this comes from Jim Rohn. He says life is like 4 seasons. Yes, जिस तरह कुदरत में सीजन्स छुपे हुए, इस तरह जिंदगी में भी सीजन्स छुपे हुए। तो कोई सीजन होता है जिसमें आप बीज डाल रहे होते हैं कोई सीजन होता है जिसमें आप उस बीज का बहुत ख्याल रख रहे होते हैं, मेहनत कर, और पता भी नहीं होता कि निकलेगा या नहीं निकलेगा लेकिन फिर एक सीजन आता है जिसमें आप लुटियां डालते हैं, यस, झूमते हैं, और फिर सब उजड़ जाता है, फिर दोबारा शुरू होता है। तो मेरी जिंदगी में भी इसी तरीके से सीजन्स आते जाते हैं। शहजाद, आपकी जिंदगी में आते जाते हैं सीजन्स? बिल्कुल आते जाते हैं सीजन्स। अब मैं और गर्मी में सर्दी की तवक्को करूं और सर्दी में गर्मी की तवक्को करूं, बजाय इसके कि गर्मी में गर्मी वाला काम करूं और सर्दी में सर्दी वाला काम करूं, नेचर से हम आहंग आ जाऊं। सो लाइफ इज मेनी थिंग्स हैपनिंग एंड आई हैव टू स्टे इन हार्मनी एंड स्टे अलाइन्ड टू व्हाट आई एम हियर फॉर। मेरे बनाने वाले ने मुझे एक्सीडेंट के तौर पे नहीं पैदा किया, मुझे एक मकसद दिया है, मुझे कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर दिया है। मैं किसी ऐसे शख्स से नहीं मिला जो कि मुझे कुछ ऐसा ना बता सका हो या कुछ ऐसा कर ना सकता हो जो कि कोई और ना कर सकता हो। यकीनन there is always something that you know that you can do that nobody else can do, and that is what makes every human being worthy, and that is what makes every human life valuable. So life is that, it's an exam, it's seasons, it's being in harmony, it's not expecting perfection, and it's making the most of it.
खेत जल भी जाता है और खेत ज्यादा भी देता है। दोनों सूरतों में खुश रहना, दोनों सूरतों में आगे बढ़ते हुए देखना is for me life, and that's what we are put here for. That in every moment I'm able to demonstrate with my action, with my amal, with my सोच, with my word कि यार वाह, अगर ये एक इंसान इतना अच्छा सोच सकता है तो ये बनाने वाला, मेरे अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार दिया है कि मेरी तदबीर मेरी तकदीर हो सकती है शहजाद। मेरी तदबीर, उसने खिलाफत में की मुझे जहांगीर ही अता की है कि अगर मैं राइज करूं तो मैं उसका खलीफा हूं। दिस इज अ बिग मैंडेट। हम्म लेकिन इस हम्म मैंडेट को क्रैक करने के लिए मैं ये तो नहीं कह सकता आई एम रेडी। इस मैंडेट को क्रैक करने के लिए मेरे लिए चैलेंजेस हैं और मैं उनसे राइज करता हूँ, सीजन्स हैं उनसे गुजरता हूँ, सो दैट आई कैन आंसर इवन अ बिगर चैलेंज, so that I can serve even a bigger purpose. And this life, Shahzad, is going to end, but you can stay alive in people's minds, in हम्म people's hearts. So, हम्म look at life like that. अब इसका opposite या opposite नहीं, लेकिन इसका एक ordinary perspective क्या होगा? ये जो मैंने सारी गुफ्तगू की वो ये होगा कि मैं नौकरी करता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है और मैंने दुनिया घूमनी है। लेट मी आस्क यू द अदर पर्सपेक्टिव के ऊपर भी जाएंगे। बात यह है कि हमने आपसे लिमिटेड टाइम मांगा हुआ है, तो मैं उसके अंदर अपनी ऑडियंस के लिए जो सवाल एजेंडा के तौर पे लेके आया मैं वो सारे कवर करना चाहता हूँ। और आपके साथ Done. गुफ्तगू का एक बड़ा प्रॉब्लम हमेशा मुझे ये रहा है कि आपके साथ गुफ्तगू में टाइम की बिल्कुल खत्म होने का एहसास ही नहीं रहता। अब बात आप ये कर रहे हैं कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द एंड। जब आपके पास डेस्टिनेशन होगी तो यू कैन हैव योर जर्नी डिस्टाइंड टुवर्ड्स दैट डेस्टिनेशन। और फिर दूसरी तरफ आपको मैंने यहाँ पे भी देखा कि आप मॉन्स्टर से भी डराते हैं। आप वीडियो गेम्स के मॉन्स्टर्स को कहते हैं कि उनको एम्ब्रेस करना भी ज़रूरी है। व्हेन दैट मॉन्स्टर इज ड्यू टू कम एंड वी आर मस्ट एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर अस टू एम्ब्रेस दैट मॉन्स्टर। मुझे ये बताइए कि जब चाबी ढूंढने के लिए रोशनी अंदर ही है तो फिर मॉन्स्टर बाहर का क्यों है? मॉन्स्टर भी तो अंदर ही होगा कहीं पे। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट मॉन्स्टर सर? वंडरफुल वंडरफुल, आई लव योर क्वेश्चंस। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जवाब उस सीख से दूं जिस पे मैंने वो बात बनाई थी। सो एक बहुत अच्छा मॉडल है और आप लोग कब भी कर सकते हैं और साथ लगा भी सकते हैं जब मैं बता रहा हूँ। द हीरोज जर्नी। हीरो की जर्नी जो है वो एक ऑर्डिनरी दुनिया में शुरू होती है और एक स्पेशल दुनिया में छलांग लगाती है। ऑर्डिनरी दुनिया में वो उठता है और वो कहता है ये जुल्म क्यों है। ऑर्डिनरी दुनिया में उठता है और वो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितने लीडर्स को आपने वोट किया है, सपोर्ट किया है, उन्होंने यकीनन किसी ना किसी चीज को चैलेंज किया है। दैट्स द इब्तिदा। लेकिन जब वो हम्म चैलेंज करते हैं ना तो उसके बाद वो एक डिफरेंट दुनिया में चले जाते हैं। और वो जो दुनिया है वो एक स्पेशल दुनिया है जिसमें क्या है, इसमें वही शाहरुख खान की मुश्किलात हैं दुल्हनिया को ले जाने तक की, जो कि मॉन्स्टर्स हैं। अब शहजाद ये क्यों है? ये इसलिए है बॉस कि मेरा गेम प्ले बेहतर कैसे होगा? हाउ विल आई राइज फॉर अ बेटर चैलेंज? इफ आई हैव टू बिल्ड दिस मसल आई हैव टू लिफ्ट। If I have to serve a better purpose, Shahzad, if I have to हम्म do better in life, then I have to face better monsters. How's that? या So कुदरत ने challenges के अंदर मेरी तैयारी छुपाई है ना। इन तमाम challenges के अंदर मेरे पास ये मौका होता है कि मेरा सब्र बढ़ता है, मेरा हम्म कंपैशन बढ़ता है, मेरी ह्यूमिलिटी बढ़ती है। मैं झुक जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरी क्या औकात है यार, मैंने इतना मंसूबा बनाया, देखो क्या हुआ। उस चैलेंज में उस बला को जब हराने के लिए मैं अपनी सलाहियत बढ़ाता हूँ यार। राउंड 1 से राउंड 10 तक आपकी स्किल कितनी बढ़ जाती है, सो हम्म गेम में बढ़ जाती है। सो लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट। सो लेट मी टेल यू दैट द बिगेस्ट entrepreneur इज द guy who is fighting the biggest monster. The ओके biggest leader has been the person who has fought the biggest monster. So जब आप मॉन्स्टर देखते हैं शहजाद, तो मैंने ये सीखा है कि दो आवाजें आपके अंदर होती हैं हम्म आसान करने के लिए। एक आवाज है द वॉइस ऑफ फियर। इट सेज द मॉन्स्टर विल किल यू। इट सेज कि तेरी जान जाएगी, इट सेज कि तेरा माल जाएगा, इट सेज कि तेरी इज्जत जाएगी, इट सेज कि तू डूब जाएगा। एंड
उसी मॉन्स्टर को देख के एक वॉइस ऑफ फेथ है, और वॉइस ऑफ फेथ कहती है कि मेरा बनाने वाला इन तमाम मॉन्स्टर से बड़ा है। उसने ओके। जिम्मेदारी ली है मेरी जिंदगी की, मेरी इज्जत की। सो अब मैंने उसको फेस करना है, एंड नॉट विद द वॉइस ऑफ फियर बट विद द वॉइस ऑफ फेथ, facing the monster. If you are running away from the monster, you're not growing, Shahzad. And that's what I meant. That's what I meant, right? So, ओके। तो अब इसमें तुम बस याद कर लो कि मारियो की जो आखिरी वाली बला होती थी ना, हम्म। if you want the princess, you got to learn to slay the monster. And let me tell you that life has interesting ways. यानी आप जाते हैं, गेम जब खेलते थे तो आप पहुंचते हैं तो पहली मर्तबा तो नहीं होता, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप वापस करते हैं, फिर आप वापस करते हैं, फिर आप फेंक नहीं देते रिमोट, आप ये नहीं कह रहे थे ये क्या बकवास है। जिंदगी में हम रिमोट फेंक देते हैं हम्म। instead of going again and believing and learning from each mistake. So that's the monster catch. Joseph Campbell का है ये, the hero in you, by the way. ओके, आई विल कैच इट। उमर भाई, थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी हो जाएं अगर आप इजाजत दें, तो थोड़ा मुश्किल में डालूं आपको। मुझे तो लगा आप ऑलरेडी मुझसे बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, और मैं पता नहीं अच्छा, क्या आपने एक बातें कर रहा मर्तबा हूँ। आपने एक मर्तबा कहा कि भाई, अभी अभी भी आप जिक्र कर रहे थे कि अगर मसल बनाना है तो फिर मसल्स के लिए जो है आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। जी जी। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि ओल्ड मैंट्रा जो है वो कहता है कि पहले होता था बॉडी, इमोशंस, माइंड और सोल, जबकि आपके कहने के मुताबिक इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द सोल, इट डायरेक्ट्स टूवर्ड्स माइंड, एंड वॉट एवर माइंड डिसाइड्स, हार्ट वर्क अपॉन इट, एंड यू कीप बॉडी एट लीस्ट। मुझे ये बताइए उमर भाई, अगर मेरी और आपकी तरह के मसल्स होंगे बॉडी के, तो बॉडी कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकेगी जो कोई सोल, माइंड और हार्ट कह रहा है? नहीं, आई थिंक ये हम इसलिए करवाते हैं, स्टीफन कभी 7 हैबिट्स में सोल माइंड इमोशन बॉडी को बहुत इलेबोरेट करते हैं, और उनका भी मुद्दा ये है कि बॉडी पे हम बहुत ज्यादा वेन है, हमें बहुत ज्यादा फिक्र है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। इस हम्म। बात की फिक्र नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है, इस बात की फिक्र नहीं है कि इसमें कितनी गंदगी भरी हुई है, और शायद इस बात की तो बिल्कुल फिक्र नहीं है कि यार मैं तो मुसाफिर हूँ, हम्म। और मैं इससे पहले भी था और इसके बाद भी हूँगा। 2 साल का भी तो शहजाद था ना, हम्म। 10 साल का भी शहजाद था, 15 साल का भी था, 30 साल का भी। मोटिवेशनल स्पीकर शहजाद भी हैं, दादा शहजाद भी होंगे। हु इज दिस शहजाद रियली is an important question, right? Is Shahzad his body? Is he the muscle and the flesh and the bones? Because that's going to end. हम्म। So you are more than that is the point of it. और ये सारी चीजें लिंक्ड हैं, ये हम बांटते इसलिए हैं ताकि समझ हम्म। सकें। लेकिन यकीनन हम जानते हैं कि एक रूह है और एक जिस्म है, और हम्म। हम जानते हैं कि इन दोनों के दस्तरख्वान अलग हैं। जिस्म का हाँ। दस्तरख्वान तो लज्जत है, जिस्म का दस्तरख्वान तो मजा है, जिस्म का दस्तरख्वान तो शहवत है। रूह का दस्तरख्वान खाने से तो नहीं पूरा होता, रूह का दस्तरख्वान तो अपना खाना देने से पूरा हो जाता है। रूह का दस्तरख्वान मजा लेने से तो नहीं पूरा होता, मजा बांट देने से, मजा छोड़ देने से पूरा हम्म। होता है। हम्म। तो ये फर्क करना जरूरी है अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, बिकॉज बॉडी पे अगर सिर्फ चले तो वेन है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है शहजाद कि मैं प्रायोरिटी में जब कहता हूँ ना सोल फर्स्ट एंड बॉडी लास्ट, बिकॉज आरओआई के लिहाज से बॉडी इज द लास्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बॉडी का सबसे कम होता है, और सोल का आप सोचें रूहानी कामों का क्या रिटर्न है, आपका बिलीफ, मेरा बिलीफ, जो भी बिलीफ है आपका, हम्म। चले छोड़े, माइंड के काम का क्या रिटर्न, माइंड की स्किल बनाने का, नए लफ्ज सीखने का, एनालिसिस, जो भी आप टेम्पलेट्स इसमें इंस्टॉल करते हैं, क्वालिफिकेशंस जो भी आप बढ़ाते हैं, सो दैट यू कैन व्यू द वर्ल्ड बेटर, राइट? क्या उसका रिटर्न होता है लाइफ हम्म। लॉन्ग? क्या रिटर्न होता है जज्बात का? एक दोस्त फॉर ए, क्या रिटर्न है एक मेकअप का, क्या रिटर्न है एक शावर का, क्या रिटर्न है एक पिज्जा का, क्या रिटर्न है बॉडी एफर्ट का? एंड ओके। श्योर बॉडी में न्यूट्रिशन डालने की जरूरत है, बॉडी को हेल्दी रखने की जरूरत है, और मेरी बॉडी कतई ये मिसाल नहीं देती। यू शुड हैव द मसल्स, यू कुड ग्रो देम, लेकिन मेरा काम क्योंकि शायद वो नहीं है इसलिए मैं उस पर इतना
सेंस नहीं बना पाया, but I hope you get the point, right, Shahzad? It is Yeah. helping people rise beyond this. और ये तो फेथ का भी बहुत अहम चैप्टर है कि तुम सिर्फ ये जिस्म नहीं हो और सिर्फ इसके पीछे दीवाने ना हो जाओ और इसके सिर्फ नीड्स को पूरा करने में जिंदगी ना लगा दो। बिल्कुल ठीक है, यानी कि बात ये यहाँ पे आके बैठी कि इट इज़ नॉट इग्नोर्ड बट इट इज़ पुट इन द लिस्ट, और इसकी अपनी अफादियत है, ये अपना कॉम्प्लीमेंट करती है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जैसे कि आपने जिक्र किया। उमर, आपने अभी बात की कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो भी हमसे कुछ चैलेंजेस या कुछ बहुत से वादे करके आगे बढ़ते हैं। आई कॉट यू वंस इन योर टॉक वेयर यू टॉक अबाउट अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ आवर्स हु इज़ करंटली प्राइम मिनिस्टर। यू शेयर्ड के उसके डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ को देखा जाए तो एज ए क्रिकेटर, एज a person who has built a hospital and now in politics, and you concluded that talk upon 3 Ds of success जहाँ पे आप discipline, direction और drive की बात कर रहे होते हैं। The question arises कि आपके पास ड्राइव भी आ गई, आपके पास डिसिप्लिन और डायरेक्शन के हवाले से अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आई वुड लाइक यू टू कमेंट अपॉन डायरेक्शन, जहाँ पे आप कहते हैं कि एक्सपर्ट लोगों से बात कर लेना बेहतर है और अपने उन दोस्तों का जिक्र बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिन्होंने पहले कभी इस तरह का काम नहीं किया। क्वेश्चन इज कि जो एक्सपर्ट है वो भी तो कोई ना कोई लिमिटेशंस रखते हैं, तो हाउ टू बिलीव ऑन द एक्सपर्ट्स कि एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? Shazad, nobody just goes to an expert, asks a question, and gets an exact answer and comes back and fits that answer to the situation. That's not how it works. हम्म। But definitely, जब मैं एज अ ट्रेनर किसी सीनियर ट्रेनर से, और मैं बहुत सीनियर ट्रेनर्स के साथ, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू स्पेंड टाइम विद देम एंड टू लर्न फ्रॉम देम। मैं आपको बताऊं, इतनी फास्ट फॉरवर्ड लर्निंग हो जाती है कि वो मसला जो आप अभी नहीं देख पा रहे जिस तरह हम्म। मेरे उस्ताद एक कमरान रिजवी हमेशा अच्छी ट्रेनिंग के बाद कहते थे, वेरी गुड, डोंट लेट इट गेट टू योर हेड, डोंट लेट इट गेट टू योर हेड। एंड बिकॉज एंड ही वाज फार अहेड इन द गेम, राइट? हम जब ट्रेनिंग में आए तो हम तो वी वर सो यंग एंड ही हैड started out on such a strong note in Pakistan and could really tell things and demonstrate things that for the young ones was fast forwarded learning. और फिर हमने सर पे लगते हुए भी देखा, अपने सर पे भी लगते हुए देखा, साथियों के भी सर पे लगते हुए देखा। So experts का ये that's where I say that you've got to ask somebody who has done it, who has been there, who has conquered it, who has done it, और वो हर डोमेन के अंदर आपको मिलते हैं। लेकिन आप solution exactly fit नहीं करते। You do your own thinking always because your business, your challenge, your life is needs to be worked out by you. Like this is where we started this dialogue with experts के बजाय अगर मैं नॉन एक्सपर्ट से बात करता हूँ तो अच्छा भी होता है at times. You see, for example, I talk to somebody who does not know training, gets me very good insight. मुझे बहुत पता चलता है मार्केट के बारे में, कस्टमर के बारे में पता चलता है, समटाइम्स बहुत ही क्रिएटिव थॉट भी आ जाती है शहजाद। लेकिन हम्म। मुझे अपने काम के चैलेंजेस के हवाले से, अपने फ्यूचर जो मैं इस डोमेन में बनाना चाहता हूँ, अगर मुझे वो रन बाय करना है तो मुझे उससे बात करनी है जो कि उस ख्याल को कम से कम विजुअलाइज कर सके, उसने वो खेल किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे खेला हो। That's the expert. And hands down, you will find many, and you should always respect such people and reach out to them. In fact, इसमें आपकी अपनी थोड़ी सी ओपन माइंडेडनेस चाहिए। कहते हैं कि लोग अपनी कामयाबी की वजह से शट हो जाते हैं, हम्म। अना की वजह से भी शट हो जाते हैं, तो पूछते नहीं है, मदद नहीं मांगते। And there is advice available, and you can save your cost, you can save those mistakes if you work with experts, if you have better people around. So that's the advice on direction. लेकिन the part of discipline is very important, Shahzad। इसको ऐसे समझ लो कि मुझे एक्सपर्ट जिम में मिल गया, उसको एग्जैक्टली पता है कि जालियावाला की बॉडी पे क्या करेंगे तो मसल आ जाएगा, ठीक है, हम्म। उसने कई 100 पे चढ़ाया हुआ है प्रोटीन शेक से लेके एक्टिविटीज। यस, दिस इज अ गाय आई कैन ट्रस्ट, राइट? हाँ। ठीक एक्सपर्ट है। है, अपने काम का माहिर है। उस मेरे अंदर ड्राइव भी बहुत थी। बेगम ने कहा, यार तुम क्या बन गए हो, और यार यू आर माय हस्बैंड एंड यू गॉट टू बी द मैन, सो देयर इज अ ड्राइव, राइट? बट द डिसिप्लिन इज जालियावाला, राइट?
that an hour in the gym every day or half hour in the gym every day, और कोई भी काम आप उठाएं, कोई भी मैंडेट आप उठाएं, वो कोई ना कोई डिसिप्लिन जरूर मांगता है। अगर आप उसको ऑनर नहीं कर सकते, अगर कोहली अपने जिम को और अपने नेट्स को ऑनर नहीं कर सकता, सो कोहली रन मशीन नहीं रहेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो दैट्स द 3D मॉडल। ड्राइव आ गई, डायरेक्शन करना क्या है, और डिसिप्लिन जो डेली रूटीन है, दैट्स द मास्टरी ऑफ इट। और ये अगर 3 Ds को आप देखें तो यू विल सी दैट with one of the D's missing, you can find some success, but you will not find great success. For great success, you've got to have all 3 Ds. इस पे शहजाद एक मैं मिसाल, सॉरी मैं बहुत बोलता हूँ, एक आखिरी मिसाल ऐसे प्रोफेशनल्स की दूंगा या एंटरप्रेन्योर्स की दूंगा, who have a lot of, who are clear about the direction part, strategic होते हैं, पता हम्म होता है, डिसिप्लिन भी कर लेते हैं, और लेकिन ड्राइव नहीं होती, करना नहीं चाहते, तो कितना आगे जाएंगे? नहीं, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे उमर भाई ये है कि, और ख़ास तौर पे मेरी ऑडियंस में वो लोग जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, बच्चे और बच्चियाँ हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने अपनी डायरेक्शन और ड्राइव को जज करने के बाद, एक्सपर्ट्स लोगों से बात करने के बाद, हमने सब कुछ सेट कर लिया। अब जब हम इसके ऊपर जिम जाना शुरू हो गए, तो वो डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी वाला जो एलिमेंट है, वो कैसे मेंटेन करना है बॉस? यानी कि हाउ टू That's very स्टे okay. The how to stay, all right, या very important. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब किसी ना किसी लेवल पे जब भी डिसिप्लिनिंग की बात आती है तो उससे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को एक कोड पे लाना है। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज, therefore it needs a strong drive. ड्राइव जितनी स्ट्रांग होती है ना, उतना आप ज्यादा कमिटेड होते हैं कि हाँ यार मैं ये टाइम लगाने के लिए तैयार हूं, मैं ये करने के लिए तैयार हूं। एक तो उसके बारे में जान बढ़ाए। नंबर 2, डिसिप्लिन का ताल्लुक बहुत ज्यादा माहौल से भी है, आपके सेटिंग से भी है। सो मिसाल के तौर पे वैसे दोस्त मुंतखब कर लेना जो कि ऑलरेडी वही अकम्प्लिश कर रहे हों और वो रूटीन्स या डिसिप्लिन रखते हों। इफ इट्स अबाउट फिटनेस शहजाद, then finding a group of people who are already doing it, तभी networks, associations, cults, groups, combined studies all work out, क्योंकि माहौल ही उस चीज के ऊपर है। फिर आप अपना अगर रूटीन को, टाइम को देखें ना, जब आप सुबह दिन शुरू कर रहे हैं, एंड just give yourself a check in at the start of the day and a check out at the end of the day. सुबह चेक इन और शाम में चेक आउट। सुबह का चेक इन क्या है कि व्हाट डू आई वांट टू अकम्प्लिश, एक तो शुक्र से शुरू करें, खुशी से शुरू करें, और आज मैं क्या अकम्प्लिश करना चाहता हूँ। सिर्फ ये 5 मिनट जो है ना शहजाद, दिन में बहुत क्लैरिटी ले आते हैं, और दिन में जो बड़े, जो आपके अकम्प्लिश करने वाली चीजें हैं ना, वो आपके सामने जरूर आती हैं। और अगर कहते हैं कि अगर आप सुबह दिन में वो सोच सकते हैं, बल्कि मेरी माने तो उसमें से जो सबसे सबसे अगली चीज है ना, उसको सबसे पहले कर लें, तो बाकी दिन खुश हो जाता है। यस। और अगर शाम में मैं ये रिफ्लेक्शन कर लेता हूँ ना शहजाद, कि मैंने आज के दिन में क्या किया, ट्रस्ट मी, मेरा दिमाग कभी नहीं मुझे इस बात को भुलाने देता कि आज मैंने नमाज नहीं पढ़ी ये वाली, आज मेरे पास उस शख्स का मैंने वादा किया था, मुझे पहुंचाना था, मैं नहीं कर सका। दुनिया ओके। को नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं, मुझे पता चलता है, और मुझे एग्जैक्टली पता होता है, ये अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। अब शहजाद ये मुश्किल है ना, तो इससे हम भागते हैं, बेड में पड़े और ईयर प्लग्स लगाए और सो गए। So we run away. So a check in and check out can help you do the discipline. Number 3, लेकिन डिसिप्लिन क्योंकि एक तो डर्टी या एटलीस्ट टफ साउंड करता है दिमाग के अंदर, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल माइंड हो और क्रिएटिव हो। क्रिएटिव हो, मिसाल के तौर पे अगर आप मेरी तरह नेटफ्लिक्स बहुत ज्यादा देखते हैं, तो आप ट्रेडमिल और नेटफ्लिक्स साथ में ला सकते हैं। या अगर आपको लंबे लंबे फासले तय करने पड़ते हैं, आप बहुत दूर रहते हैं, 50 मिनट लगते हैं दफ्तर, स्कूल, कॉलेज पहुंचने में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं डीएचए जाते हुए बस के पॉइंट में किताबें पढ़ता था, क्योंकि इतना टाइम लगता था, इतने सारे बच्चे उतरते थे, चढ़ते थे। कराची के अंदर एक बड़ी बस 50 स्टूडेंट्स की जब चलती है, फ्रॉम डिफेंस अप टू नाजमाबाद, इट हैज टू ड्रॉप सो मेनी किड्स दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। शहजाद, इज गुड टाइम, और वो वैसे ही जाया हो रहा होता है। वेटिंग रूम टाइम, लू टाइम। हाँ, बिल्कुल यस। सही।
So sometimes you can put things together, and if you can creatively put things together, it makes it easier disciplining them. Last, Shahzad, another suggestion is कि देखें कंपनियां लोग बल्कि let's look at it जन्नत और दोजख यानी हम चलते हैं ना जरा मजा मिले रिवॉर्ड मिले और सजा हो जाएगी खौफ खा जाते हैं तो अगर मैं अपने रूटीन पे अपनी मजे वाली चीजें बांध दूं हम्म कि हाँ यार ठीक है सीजन तो देखूंगा लेकिन उस वक्त जब 1 घंटा ये भी करूंगा हम्म just हम्म give yourself okay I'm gonna enjoy that meal I'm gonna go out to that gathering यार मैं उस कॉन्सर्ट में चला जाऊंगा whatever that is that you like doing what you like doing उसको conditional बना दें to what you don't like doing वाह as a ओके reward. आई Yes. गॉट Similarly, if you miss out on something very, very important, you miss out on something very, very important, you can punish yourself. And ओके that is disciplining. ये नफ्स को मैनेज करना बहुत बड़ी जीत है हम्म मैं कभी कभी शावर में गर्म पानी अब जाहिर है इस्लामाबाद में तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है कराची बॉय के लिए तो गर्म पानी से नहाते हैं ना नाउ शहजाद दैट्स फन राइट How is हम्म the hot shower in cold weather? Oh, या let me ask you that again. How is the first morning when nobody has used the geyser, first shower, and you get all of the hot water? But you know what is challenging, Shazad? Is to flip the tap to the other side हम्म and go cold in cold. और मैं ये हम्म पानी के साथ अब बहुत सक्सेसफुली कर लेता हूँ मैं सिर्फ तुम्हें अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं डिसिप्लिन लैक करता हूँ और मैं अपने आप को उस पे विन कराने की कोशिश करता हूँ कि यार दिस इज नॉट डूएबल लेट मी ट्राई डूइंग दिस चैलेंज योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन नहीं होता और कभी कभी जो ऑपोजिट फ्लिप है ना इट कैन बी ट्रांसफॉर्मेशनल इट्स लाइक अ स्विच कमिंग ऑन सो व्हाट इज इजी डज नॉट हेल्प यू ग्रो what is difficult, what needs tightening up, जिसमें जरा नफ्स मजे उस लम्हे के फायदे की कुर्बानी है यकीनन उसमें कुछ ना कुछ भलाई जरूर है एंड आई थिंक दैट इज द मैजिक ऑफ डिसिप्लिन देखो मैजिक ऑफ डिसिप्लिन शहजाद ये है कि 100 rupees saved every day at the end of the month at the end of the year invested at the end of 10 years shahzad saab you will be a millionaire inshallah गॉट इट गॉट इट वेरी गुड डिस्कशन सर आज हमने जब गुफ्तगू का आगाज किया था तो यू स्टार्टेड विद लाइफ डेफिनेशन जहाँ पे उसको कहा कि ये अपॉर्चुनिटी एग्जाम की तरह है और फिर आपने कहा कि फियर भी है अशरा मुबशरा की एग्जांपल भी आपने दी मिस्ट्री का भी आपने कहा और आगे बढ़ना है और मॉन्स्टर्स को एम्ब्रेस करते रहना है फिर आपने दूसरी एनालॉजी में 3 Ds ऑफ सक्सेस की बात की हीरोज जर्नी की बात की बिगेस्ट लीडर जो है वो बिगेस्ट मॉन्स्टर्स को विन करता है और फिर 2 आवाज़ें आती हैं आपने कहा कि एक आवाज़ फियर की है और एक आवाज़ फेथ की है जहाँ पे आप खुद भी कहते हैं कि यू आर मोर ऑफ फेथ पर्सन लेस ऑफ द फैक्ट पर्सन फिर हमने चाबी गुम होने की एग्जांपल दी और जहाँ कहा कि रोशनी अपने अंदर ढूंढनी है हमने और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जिक्र किया रूह और जिस्म के दस्तरखान का जिक्र किया एंड यू टॉक्ड अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट लीस्ट you gave us 5 pointers to have consistency and discipline एंड द 5 pointers स्टे के आपकी स्ट्रॉन्ग ड्राइव होनी चाहिए आप एक इकोसिस्टम बना लें जिसकी वजह से आपको हेल्प हो और चेक इन एंड चेक आउट फॉर योरसेल्फ एवरी डे और क्रिएटिव सॉल्यूशंस की बात की और 5th नंबर पे आपने कहा कि गिव योर ओन टारगेट्स एंड हैव ए रेप्रिमांड और रिवॉर्ड सिस्टम जहाँ पे आप सेल्फ yeah अकाउंटेबिलिटी भी करते रहें आपने आज की डिस्कशन के अंदर उमेर भाई लाइफ के बारे में एक बड़ा कंसिडरेबल कंटेंट शेयर कर लिया आपने एडवर्सिटी या मुश्किलात या मॉन्स्टर्स जो भी नाम दे दें आपने उसके ऊपर अपना विजडम शेयर कर लिया एक चीज़ जो कि मैं समझता हूँ कि अभी तक हमारी तिश्नगी को बढ़ा रही है और वो प्यास बुझ नहीं रही है यू टेल अस इन द लास्ट ऑफ द प्रोग्राम्स टाइम समथिंग अबाउट excellence. What is the definition of excellence in your viewpoint, sir? Thank you for asking that. Excellence is, and pursuit of excellence is you and me, our responsibility. अगर अल्लाह की ज़ात excellent है, तो pursuit of excellence
is the human purpose, right? So what is excellence? So अल्लाह की हर सिफत से पहले द आता है, द, और द उससे पहले लगाया जाता है जो अल्टीमेट होता है। और बाय द वे ये भी हमारे अल्फाज है, हमें अल्लाह ने दिए बहुत सारे, और फिर हमने ज़बानें एक दूसरे से सीखी, ट्रांसलेट की, लेकिन ये अल्फाज हैं और ये यकीनन किसी चीज़ की निशानदेही करते हैं। जिस चीज़ की निशानदेही करते हैं वो अपनी ज़ात में हद है, खूबसूरती की, विजडम की, इंसाफ की। एक मैं तुम्हें मिसाल इसको ऐसे देना चाहूँगा कि क़यामत पे बहुत सारी सज़ाएँ होंगी और बहुत सारे लोग खुश होंगे, बहुत सारे जो हम सुनते हैं किस्से, लेकिन कोई भी शख्स अल्लाह के अदल से नामुतमईन नहीं होगा। Yeah. हर शख्स को वो फैसला कबूल होगा। आपने कभी ऐसा शख्स देखा, कोई ऐसी जात देखी जिसके फैसले से हर शख्स सहमत हो, जो पूरी कायनात पे फैसला सुनाए? तो ये है द जज, Hmm. और ये उसने ले लिया है, उसने फैसला करना है। सो वो हर चीज से पहले द है, और आप और मैं अ बनते हैं, अ जज। यू कैन बी अ जज ऑफ ए सिचुएशन, ऑफ अ सिचुएशन, बट हाउ डू आई जस्ट बी ऑर्डिनरी इन दैट रोल? क्या मैं ऑर्डिनरी पे इक्तफा कर लूं? क्या मैं चैलेंज करूं कि नहीं यार, ये इससे बेहतर हो सकता है, ये इससे बेहतर हो सकता है, ये इससे बेहतर हो सकता है, इससे बेहतर हो सकता है? और यकीनन बेहतरीन, अगर खिदमत जाननी है तो उसकी हद, अगर खूबसूरती जाननी है तो आप मुझे क्या नेचर ही दिखाएंगे ना, पहाड़ बागात यही दिखाएंगे। आप कहेंगे उमर ये हसीन होता है, और आप उससे क्या दिखा रहे हैं कि यार दैट्स द बेस्ट दैट यू हैव सीन, बट दैट्स आवर लिमिटेशन, राइट? द बेस्ट इज up there. So therefore I'm saying excellence is that. Now your and my job is not to be mediocre, Hmm. not to be in our comfort, and to really really do our best job, best job. And let me tell you, Shahzad, your best today and your best tomorrow in your own mind and on ground is also evolving. Excellence की कोई हद नहीं है, आप कभी एक्सीलेंट हो नहीं सकते। सो यू कीप इम्प्रूविंग, यू कीप टॉपिंग। तभी कहते हैं कि असल असल जो रेस है, असल जो गेम है, वो अपने ही स्टैंडर्ड को बीट करना है। सो I'd like to close with this, that you look at what you've done yesterday, Hmm. and you make it better today, and then you make it even better tomorrow. अगर तुम्हारी जिंदगी के 2 दिन बराबर हैं तो तुम खसारे में हो। Wow. So Before, growth, we are mandated on that, and to yeah. whatever that is। इस पे मैं एक बहुत ही सिंपल, मुझे मेरी उस्ताद ने सिखाया कि तुम्हें, माइकल एंजेलो ने कहा था, तुम्हें टेबल भी साफ करने के लिए दी जाए तो इस अंदाज से साफ करो कि फरिश्ते आके कहें कि किस माई के लाल ने साफ की है। So I don't know if I make sense here or not, but that's how I understand it. Thank you, Umair. You are known for Thank this. you. Thank you very much for your time and wisdom. You are known Thank for you. this kind of discussion. Thank you once again. Before we go, just to share the lighter part of the program, एक साहब है, आपने वो पानी की एग्जांपल दी, तो अदनान जमान साहब रावला कोट कश्मीर में होते हैं, और कश्मीर में आजकल बड़ी सर्दी है, तो वो कह रहे हैं कि कभी रावला कोट में दिसंबर या जनवरी में आके ना ये दिखा दे। बिल्कुल ये अदनान, तुम्हारे तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ना कोई फौजी जवान है जो कि ये जरूर कर रहा है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग डार्लिंग। थैंक खुदा यू। करे तुझे तेरे मुकाम से आशना। ये तो जिस्म पानी की तो बहुत छोटी बात है, इकबाल के कलाम है, खुदा करे तुझे तेरे मुकाम से आशना। Human beings don't know or rarely recognize what they're capable of doing, what they're capable of producing. और उसके लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े काम करें, छोटी छोटी अदाओं से बहुत बड़े बड़े राज खुल जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बंद दिल बंद दरवाजे खुल जाते हैं। I was watching a movie yesterday, Eat Pray Love, and there was a line जो कि हमारे बिलीफ के लिहाज से शायद थोड़ी सी, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पावरफुल लगा कि गॉड लिव्स इन यू as you।
अच्छा. lives God in lives. you, lives in you as you. अब आपका एक्शन जरा वैसे पिक करें, वैसे पिक करें. थैंक यू शहजाद. Thank you, स्टे Umair. हुआ है. अपना बहुत लवली ज़्यादा बीइंग ख्याल ऑन. रखिएगा. As Umair's teacher and mentor says, don't let it go into your head. Keep inspiring, Umair. Take very best care of yourself. Inshallah, see you again. Allah Hafiz. या खुदा.